اردو ناول انتقام قسط نمبر 155 بائے اردو داستان کیوں کی یہ حماقت۔ لالا کی قہر برساتی نظریں وکی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ لالا سے نظریں ملانے کی جرات نہ پاتے ہوئے گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو نے میرے لاڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے اور کبھی نہیں سوچا کہ تجھے کچھ ہوا تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ ٹھیک ہے، نہ سوچ میرے بارے میں، پر اس کا تو سوچ لے جسے اپنے نام پر ویرانے میں بٹھا کر آیا ہے، اور اگر اس کا بھی خیال نہیں تو اس کا سوچ لے جس نے بھی تیری صورت بھی نہیں دیکھی۔ کیا چاہتا ہے تو؟ باپ کے نام پر اس کے پاس فقط ایک نام ہو اور وہ کبھی نہ جان سکے کہ باپ کا پیار اور شفقت کس چیز کا نام ہے۔ لالا بے حد جذباتی ہو رہا تھا اور اس کی آخری بات نے تو وکی کے دل کو بھی مٹھی میں بھینچ دیا تھا۔ وہ خود بغیر باپ کے پلا تھا، اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا کہ باپ سے محرومی میں زندگی میں کون کون سی محرومی کو جنم دیتی ہے۔ اور وہ نیلی، اس کی حالت ایسی تھی کہ تو اسے اٹھا کر قبرستان لے گیا۔ کیا ارادہ تھا تیرا کہ مومی کے ساتھ ساتھ اسے بھی قبر میں اتارنا چاہتا تھا؟ لالا کا غصہ کس طرح کم ہو کر نہیں دے رہا تھا اور وکی بے بھاؤ کی سنتا جا رہا تھا۔ نیلی کی ضد پر اسے لے کر گیا تھا لالا۔ مومی کی قبر پر جانے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا 5 منٹ کے لیے جاتا ہوں، شاید اس کے دل کو قرار آ جائے۔ وکی نے پہلی بار مین مناتے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ نادان لڑکی ہے اور اس وقت بہت بڑے جذباتی بحران سے گزر رہی ہے۔ تیرا کام تھا کہ اس کو سمجھا بہلا کر کسی طرح ٹال دیتا، پھر حالات بہتر ہونے پر میں خود اس کو وہاں لے جانے کا انتظام کر دیتا، لیکن تو نے اس کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی۔ وہ تو شکر ہے کہ چوکیدار نے تم لوگوں کو نکلتے کے ساتھ ہی اصغر کو فون کر کے اطلاع دے دی، اور یہاں سے لوگ تیری اور نیلی کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ جس جگہ نیلی کو رکھا گیا وہاں ان کا ایک آدمی بطور چوکیدار حفاظت کے لیے موجود رہتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ باہر کے چھوٹے موٹے کام بھی نمٹا دیتا تھا، لیکن اس کا بنیادی کام سیکورٹی کا ہی تھا۔ اس کی طرف سے اطلاع ملتے ہی معاذ، اصغر اور مزید 4-5 آدمی قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ اپنی گاڑیاں قبرستان سے تھوڑے فاصلے پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل مختلف سمتوں میں پھیل کر قبرستان پہنچے تھے۔ انہوں نے گوریلا لڑائی کے انداز میں نہایت خاموشی سے ان 3 افراد کو چھاپ لیا جو وکی اور نیلی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ چوتھا آدمی عین اس وقت معاذ کی گولی کا شکار ہوا تھا جب وہ وکی کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ایسا نازک لمحہ تھا جس میں معاذ نے اپنی بے پناہ مہارت سے بے مثال نشانہ لگا کر وکی کی طرف بڑھنے والی موت کو بچھاڑ دیا تھا۔ اگر وہ شخص معاذ کی گولی کا نشانہ نہ بنتا تو مومی کی قبر پر اس کے بجائے وکی کے خون کے چھیٹے پڑے ہوتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اللہ کی مہربانی سے ہم محفوظ بھی رہے، لیکن اب تو مجھے اپنے بچنے کا بھی افسوس ہو رہا ہے۔ نہ بچتا تو کم از کم اس وقت اس طرح ذلیل نہ ہو رہا ہوتا۔ وکی نے دیکھا کہ لالا کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تو منہ لٹکا کر دکھی لہجے میں بولا، ہاں مر جا سالے، پہلے تیرا باپ تو چھوڑ کر مر گیا، اب تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر مر جا۔ میں تو پتھر دل کے ساتھ قیامت کے بورے سمیٹ کر آیا ہوں کہ ایک ایک کر کے میرے اپنے مجھے چھوڑ کر جاتے رہیں گے اور میں پیچھے بیٹھا یتیموں کو پالتا رہوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں لالا جس غصے اور کرب کی شدت کے ساتھ بولا، اس نے وکی کو گم کر دیا۔ لالا خود بھی اپنے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ ساری زندگی جو بات اس نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی وہ اچانک ہی لبوں پر آ گئی۔ کیا تعلق ہے تمہارا میرے باپ سے؟ لالا لاکھ دعائیں کرتا کہ وکی اس کی بات پر غور نہ کرے، لیکن وہ اس کے الفاظ کو پکڑ چکا تھا۔ کون ہوں میں تمہارا، وہ کیا رشتہ ہے میرے بیچ؟ کیا وجہ کہ تم مجھے اس دیوانگی سے چاہتے ہو، مجھ پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہو؟ اس کے سوالوں نے لالا کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جو ابھی تک کھڑا وکی کو ڈانٹے ڈبٹنے میں مصروف تھا، تھکے تھکے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج سچ بول دو لالا، میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ تمہارے اور میرے بیچ کوئی خاص تعلق ہے۔ ادب اور احترام نے کبھی مجھے تم سے سوال کرنے کی ہمت نہیں دی، لیکن آج سوال میرے لبوں پر آ گیا ہے تو جواب دے ہی دو۔ وکی نے اسی التجا کی۔ تو میرا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا۔ میں نے کبھی تم لوگوں سے اپنے تعلق کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ کہیں میری دشمنیاں تمہارے حصے میں نہ جائیں، لیکن قسمت کے لکھے نے تجھے میری ہی گود میں لا ڈالا۔ پہلے بھائی گیا اور پھر بھاوج اور بھتیجی بھی اس ظالم دنیا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ان کے قاتلوں کو بدترین انجام سے دوچار کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تجھے مضبوط اور طاقتور بنانا ہے تاکہ تو اس دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے۔ تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، لیکن تیرے باپ کا خون رنگ دکھاتا ہے تجھ میں۔ تو اسی کی طرح جذباتی اور نرم و نازک احساسات کا مالک ہے اور اکثر اسی کی طرح دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگتا ہے۔ لالا بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔
मुझसे अपना रिश्ता क्यों छुपाया? वो लाला के ऐन सामने घुटनों के बल आ बैठा। कहा ना कि अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। दुश्मनों को खबर हो जाती कि तू मेरा भतीजा है तो मुझे तोड़ने के लिए तुझे निशाने पर रख लेते। बेशक ऐसा हो जाता, लेकिन मैं यतीमी के इतने मुकम्मल एहसास के साथ तो ना जीता। मुझे इत्मीनान होता कि मेरे सर पर बाप ना सही, बाप के भाई का हाथ है। विक्की ने शिकवा किया। मैंने तेरा ख्याल रखने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? कसर तो रह गई लाला। मैं तेरी किसी अनायत को अपना हक समझकर वसूल न कर सका। सारी जिंदगी एहसान का कर्ज चढ़ाता रहा मेरे सर पर। इसके लहजे के दर्द ने लाला को तड़पा दिया और इसके दोनों हाथों को थाम कर दिलगीर लहजे में बोला, बस ये सोचकर माफ़ कर दे कि मेरी नीयत पूरी नहीं थी। जो किया तेरे भले के लिए किया। माफ़ी मांग कर गुनाहगार करते हो बेटा कहकर सीने से क्यों नहीं लगाते? वो खफा हो गया तो लाला ने खींच कर इसे सीने से लगा लिया। इस जज्बात से भरपूर लम्हे में दोनों ही की आंखों में आंसू थे। एक तरफ अपने आप को अपना कहकर सीने से लगाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ इन अपनों का गम जिन्हें आंखें ता क़यामत नहीं देख सकती थी। क्या पोजीशन है? तमाम सिक्योरिटी कैमरे आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं। आप लोग आराम से अंदर जा सकते हैं। अपने सवाल के जवाब में कानों में गूंजने वाली आवाज़ ने मास को खासा पुरस्कून कर दिया। डीएसपी ज़हीर खान अपने घर पर सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजामात कर रखे थे और इन्हें हर इंतजाम का इंतजाम करना पड़ा था। टेलीफोन की तार कट गई विक्की। उस तरफ से मुतमिन होने के बाद इसने विक्की से रब्ता किया। कट गए हैं और जैमर भी काम कर रहा है। गुड। विक्की की रिपोर्ट सुनते इसने बेसाख्ता दाद दी। लैंडलाइन के अलावा मोबाइल फोन्स को नाकारा बनाने के लिए इन्हें जैमर का बंदोबस्त करना पड़ा था और अब खुद आपस में राब्ते के लिए वॉकी टॉकी इस्तेमाल कर रहे थे। अंदर के एक मुलाजिम को तोड़कर मकीनों और मुलाजमीन को बेहोश करने का काम पहले ही किया जा चुका था। प्रोग्राम के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम ने चाय कॉफ़ी या दूध घर वाले सोने से पहले जिस भी मशरूब का इस्तेमाल करते में बेहोशी की दवा मिलाकर सबको देने के साथ साथ खुद भी पी ली थी ताकि शक से महफूज रहे। अंदर मौजूद अफराद का ये बंदोबस्त करने के साथ साथ अब वो सिक्योरिटी के दूसरे इंतजामात को फेल करने में मसरूफ थे ताकि सारा काम खामोशी और सफाई से अंजाम दिया जा सके। दोनों गार्ड्स को ऑफ कर दिया। विक्की से फारिग हुआ ही था कि जारों की तरफ से राब्ता कायम किया गया। डीएसपी जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता था इसका अपना भी एक हिफाजती इंतजाम था। सोसाइटी में दाखिले और खराज के सिर्फ एक रास्ते को खुला रखा जाता था और वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे के ताउन से बाकायदा एक चेक पोस्ट बनाई गई थी। दिन के औकात में भी सोसाइटी में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद हर बाहर के फ़र्द को तफ्तीश से गुजरना पड़ता था और उसकी तरफ से ये निशानदेही होने के बाद कि वो किसी मुलाकाती है, पहले इस मुतल्लिका मुकीन से तस्दीक की जाती, फिर इस शख्स को दाखिले की इजाज़त मिलती थी। रात में जाहिर है यह एहतियात और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी और वो लोग तो रात के जिस पहरवा आए थे इसने चेक पोस्ट पर मौजूद गार्ड्स को मज़ीद चौकन्ना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये चालाकी की कि सब के सब एक साथ वहाँ नहीं टपक पड़े। माजूर लाला का एक साथी बाइक पर वहाँ पहुँचे थे, जबकि बाकी साथियों ने अपनी गाड़ियाँ कुछ फासले पर रोक कर पैदल पेशरफ्त करने के बाद इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली थी। किससे मिलना है? जब माजूर इसके साथी चेक पोस्ट पर आकर रुके तो एक गार्ड ने नहायत मशकूक नज़र से देखते हुए रूखे लहजे में पूछा था, इस हाउसिंग सोसाइटी में जिस तबके के लोग रहते थे वो या इनके मिलने जुलने वाले अमूमन बाइक इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ शौकीन नौजवान इस्तेमाल करते भी थे तो वो आम बाइक्स नहीं होती थी, वो कम अज़ कम भी इस कीमत की बाइक्स होती थी जिसमें एक मुतवस्सित तबके का शख्स सेकंड हैंड कार का खर्चा तो निकाल सकता था। माजरूत से साथी की आम सी बाइक ने सिक्योरिटी वालों के लिए इनकी हैसियत का तयन करने में आसानी कर दी थी और वो इनसे इनकी हैसियत के मुताबिक पेश आ रहे थे। हमें डीएसपी ज़हीर खान साहब से मिलना है, उन्होंने हमें खुद बुलाया है। माज ने किसी नीम खानदा शख्स के अंदाज में गार्ड्स के सवाल का जवाब दिया था। इतनी रात को? इसका जवाब सुनकर गार्ड ने हैरत का इजहार किया था। अब ये तो साहिब को मालूम है, उन्होंने हमें भी ऑर्डर किया है कि हम अभी आ गए। इसे जवाब देते हुए मास के लहजे में बेनियाजी थी, बल्कि इसने इस बेनियाजी के वाज़ेह इजहार के अपने शाने भी उचकाए थे। ठीक है इधर ही रुको, पहले हम डीएसपी साहिब से तस्दीक कर लें। इसके एतमाद ने गार्ड को थोड़ा सा नरम किया और वो लकड़ी के कैबिने में बैठे अपने साथी की तरफ पलटा ताकि इससे इस सिलसिले में बात कर सके। तरीकाकार यही था कि कैबिन में बैठकर ड्यूटी देने वाले के पास सोसाइटी के तमाम मकीनों के राब्ता नंबर मौजूद होते थे और वही ज़रूरत पड़ने पर इनसे राब्ता करता था। एक मिनट बात सुनो, माज से पुकारा और जैसे ही पलटा माज के हाथ में मौजूद स्प्रे की बोतल से एक फुहार निकलकर सीधी इसके चेहरे पर पड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, माज के साथ मौजूद शख्स और अंधेरे में इधर उधर पीछे के साथी भी हरकत में आ गए।
फुर्ती और मुहारत से सिक्योरिटी गार्ड को गैर फाल करते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि इनमें से किसी को नाकाबिले तलाफी नुकसान न पहुंच सके। वो सब बेचारे रोजी रोटी के चक्कर में कम सहूलियत के साथ कम तनख्वाहों में सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर दूसरों की हिफाजत के लिए अपना आप दांव पर लगा देने वाले वो लोग थे जिन्हें कुछ हो जाता तो पीछे इनके अहले खानों को पूछने वाला कोई नहीं था। चेक पोस्ट पर मौजूद इन 3 गार्ड को बिना गोली चलाए बेहोश करने में कामयाब हो जाने के बाद इनके लिए डीएसपी के घर तक रसाई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। माज और विक्की ने अपने अपने साथियों के साथ डीएसपी के घर की तरफ पेशकदमी की थी, जबकि जारो को इसके साथी के साथ इन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को संभालने की ड्यूटी सौंपी गई थी, जो सोसाइटी की 4 दीवारी के अंदर वक्फे से राउंड लगाकर मकीनों की इस तसल्ली का इंतजाम करते थे कि हम जाग रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्री से सो सकते हैं। उन्होंने अपने 2 साथी एहतियातन चेक पोस्ट पर भी छोड़ दिए थे ताकि अगर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल पेश आए तो इसे संभाला जा सके। इतने सारे इंतजामात के बाद अब वो डीएसपी जहीर खान के घर के बाहर मौजूद थे और हर तरफ से काबिल इत्मीनान रिपोर्ट सुनने के बाद बस अब अंदर जाने के लिए तैयार ही थे। तुम अपने साथी के साथ यहाँ मेरे पास आ जाओ। माज ने देखा कि इसके एक साथी बिजली के वो तार काट चुका है जो हिफाजती नुक्ता नजर से घर की बाउंड्री वाल पर बिछाए गए थे। अपने साथी को इस काम पर इशारे से दाद देते हुए इसने जारो को हदायत की थी। ओके, हम आ रहे हैं, इसने जवाब दिया और ऐन उस वक्त पर इसके पास पहुंच गया जब वो अपने साथियों के साथ बस अंदर दाखिल होने ही को था। मैं और विक्की अपनी अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल होंगे, तुम अपनी टीम के साथ एहतियातन बाहर मौजूद रहना, इसने जारो को हदायत दी और कुछ कहने के अपने साथी की तरफ मुड़ा। वो लोग आपस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बांटकर 2-2 अफराद की टीम की सूरत में काम कर रहे थे, जबकि पूरे मिशन को लीड करने की जिम्मेदारी माज के सर थी। इसका इंतखाब लाला ने खुद किया था। 1 मिनट माज, जरा रुको। वो अंदर दाखिले के लिए दीवार पर चढ़े ही थे कि जारो से रोक लिया। क्या हुआ? माज इसकी तरफ पलटा। मुझे अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी है। जारो ने मुस्तरिब लहजे में इससे आगाह किया, फिर वो ठटक गया। इसके हिसाब से अंदर मौजूद शख्स को बेहोश होना चाहिए था, लेकिन जारो बता रहा था कि इसे अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दी है। वो जारो की गैर मामूली समाज से वाकिफ इसलिए इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। किस समझ से आवाज़ सुनाई दी है? अकेले शख्स के कदमों की आवाज़ थी या एक से ज़्यादा? इसने तशवीश और बेचैनी से पूछा। एक ही शख्स था और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई तेज से चलता हुआ हमारी समझ बढ़ रहा हो, लेकिन आवाज़ दूर की थी। शायद वो ऊपर की मंजिल पर है। इसने गर्दन उठाकर बालाई मंजिल की खुली खिड़की की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा था, लेकिन इसे ऐसा लगा जैसे इस अंधेरे में कोई इनकी जानिब देख रहा हो। क्या हुआ जारो? माज ने इसके शाने पर हाथ रखकर इसे मुखातिब किया। श्श। इसने होंठों पर उंगली रखकर माज को खामोश रहने का इशारा किया और अपनी समात को पूरी तरह उस समत मरकूज कर दिया जहाँ इसने आखिरी बार तहरुक महसूस किया था। अंधेरे के बायस नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इसके हसास कानों ने खिड़की का शीशा सिरकने की आवाज़ सुनी और इससे अगली आवाज़ खौफनाक थी। किसी हथियार का सेफ्टी कैच हटाया गया था। डाउन, वो तेज लहजे में बोला और माज को अपने साथ लेता हुआ नीचे गिर गया। नीचे गिरते गिरते माज खिड़की से लपकता शोला देख चुका था, यानी जारो की समात ने बिल्कुल सच्ची गवाही दी थी और अंदर कम अज कम कोई ऐसा फर्द था जो न सिर्फ होश में था बल्कि इनसे मुकाबले पर भी आमादा था। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक बात इनके हक में जाती थी और वो ये कि फायर बेआवाज हथियार से किया गया था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द वाले अब भी बेखबर थे। फायरिंग का शोर होता और हाउसिंग सोसाइटी के मकीन जाग जाते तो इनके पास फरार के सिवा कोई चारा ना होता। सब लोग एहतियात करें, अंदर एक शख्स होश में है और हम पर फायर कर रहा है। माज ने नीचे पड़े पड़े सबसे पहले ऑपरेटर्स पर अपने साथियों को होशियार किया, फिर जारो से मुखातिब होकर बोला, क्या कहते हो? वो अकेला ही है या इसका साथ देने के लिए कोई और भी मौजूद है? मुझे सिर्फ एक शख्स की हरकत करने की आवाज़ सुनाई दी थी। अगर कोई और बिना हरकत के बिल्कुल खामोशी से मौजूद है तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जारो ने इसे जवाब दिया। वो दोनों अब तक दीवार की जड़ के पास उस जगह मौजूद थे जहाँ फायर से बचने के लिए गिरे थे। खिड़की से उस जगह तक फायर के लिए जाविया नहीं बनता था, इसलिए वो बिल्कुल महफूज थे और यकीनन यही वजह थी कि दूसरा फायर नहीं किया गया था। इससे पहले कि ये शख्स हमारे लिए मसला बने, हमें अंदर दाखिल होकर इस पर काबू पाना होगा। माज बड़बड़ाया और फिर अपने साथियों को अंदर दाखिल होने के सिलसिले में हदायत देने लगा। चूंकि वो 3 टोलियों में थे, इसलिए बैक वक्त 3 मुख्तलिफ मुकामात से बाएहतियात अंदर दाखिल होने का फैसला किया गया। हम इसे अपने साथ इंगेज रखेंगे ताकि बाकी लोगों को अंदर दाखिल होने का मौका मिल सके, इसने जारो से सरगोशी में कहा। इस वक्त टीमों की तरतीब थोड़ी सी बदल गई थी। जारो को इसने अपने साथ रखा था,
जबकि इसके और अपने साथियों की एक टोली बनाकर इन्हें दाएं जानिब से अंदर दाखिल होने की हिदायत की थी। विक्की को अपने साथी के साथ बाएं समझ से कोशिश करना थी, जबकि वो जारो अक़ब में मौजूद थे। मैं दीवार फैलाऊंगा, तू मुझे कवर देना, इसने जारो को हिदायत दी। हम अंदर दाखिल होने लगे हैं। इसकी हिदायत के मुताबिक दोनों टोलियों की तरफ से आखिरी लम्हात में इत्तला दी गई। ओके, 5 तक गिनती गिनो, फिर जंप कर जाना, इसने हिदायत दी और जारो को इशारा करके खुद किसी बंदर किसी फुर्ती के साथ दीवार पर चढ़ गया। जारो ने उस जानिब फायर किया जहाँ एक खिड़की से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इनके पास मौजूद हथियार भी बेआवाज़, इसलिए फायरिंग का शोर होने का कोई इम्कान नहीं था। दूसरी एहतियात इसने ये की थी कि बराह रास्त खिड़की का निशाना लेने के बजाय दीवार का निशाना लिया था। फायर से खिड़की का शीशा टूटता तो रात के सन्नाटे में आवाज़ दूर तक जाती और शोर किसी तौर इनके हक में नहीं था। माज अंदर पहुंच गया तो इसने जारो को अंदर दाखिल होने के लिए से कवर दिया। जारो भी बखैर आफियत अंदर पहुंच गया। इस दौरान हैरत अंगेज तौर पर इन पर एक भी फायर नहीं किया गया। हम अंदर पहुंच चुके हैं। बाकी दोनों टोलियों की तरफ से भी इन्हें बारी बारी इत्तला दी गई। अभी अपनी जगह रुके रहो, इन्हें हुक्म दिया और खुद जारो की तरफ सवाल नजर से देखने लगा। कुछ कहना मुश्किल है, शायद इसने हमारे अंदर दाखिल होने के दौरान अपनी जगह बदल ली है, लेकिन अब अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि वो किस जगह मौजूद है। इसने बेबसी से जवाब दिया, कोई बात नहीं। इसे एहसास हुआ कि वो जारो की सलाहियत पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है, इसलिए इसका शाना थपक कर इसे रिलैक्स किया और ख़ुद अंदर दाखिल होने के सिलसिले में साथियों को हिदायत देने लगा। 4 दीवारी से असल इमारत के दरमियान घास के कतार थे। उन्होंने रेंगते हुए दरमियानी फासला तय किया और अपने अपने तौर पर अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश करने लगे। इसने और जारो ने अकबी हिस्से में मौजूद एक खिड़की का शीशा काट कर अंदर दाखिल होने का रास्ता बनाया। विक्की ने अपने दरख्तों और दीगर ऊंचे मुकामात पर चढ़ने की सलाहियत का इस्तेमाल किया और रस्सी लगाकर सीधा छत पर पहुंच गया। वहां से सीढ़ी के रास्ते अंदर पहुंचने इसके लिए चंदा मुश्किल नहीं था। इनके साथियों की तीसरी टीम ने निस्बतन आसान राह इख्तियार की और घूमकर मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे का लॉक तोड़कर दाखिल होना खासा आसान था। तीनों टोलियों एक एक करके घर के लाउंज में जमा हो गई। पूरे घर में अंधेरे और सन्नाटे का राज था और इन्हें रोशनी के टॉर्चें जलाना पड़ी थी। सारे कमरों को चेक करो, लेकिन एहतियात से, या कम से कम एक मुसल्ला फर्द छुपा हुआ है और किसी भी समझ से हम पर फायर कर सकता है। अपने साथी को हिदायत देकर माज खुद एक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और एक एक करके सारे बटन दबा डाले। ना कोई पंखा चला और ना रोशनी हुई। इस तरह इसकी इस अंदाज की तस्दीक हो गई कि घर का मेन स्विच जानबूझकर ऑफ कर दिया गया था। जिस शख्स ने यह हरकत की थी, जाहिर है उनके मुकाबले में इस घर से अच्छी तरह वाकिफ था और अंधेरे में भी आसानी से हरकत कर सकता था। वो सभी होशियारी से घर का जायजा लेने लगे। हुले से मुलाजमत दिखाई देने वाली एक औरत बावर्ची खाने में रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर सर रख के सोती दिखाई दी। एक मुलाजिम लाउंज पर कालीन पर लंबा लेटा हुआ था। एक कमरे में 2 नौजवान लड़कियां यूं एक दूसरे के शाने पर सर रखे सो रही थी, जैसे बातें करते करते अचानक शदीद नींद आ गई हो। अगले कमरे में लड़कियों से उम्र में कुछ बड़ा दिखाई दे वाला लड़का राइटिंग टेबल पर सर रखे सो रहा था और इसका लैपटॉप सामने खुला रखा था। एक ख्वाबगह में दरमियानी उम्र की खातून सर से पैर तक चादर ओढ़े महवे ख्वाब थी। हकीकत में घर सोए महल का मंजर पेश कर रहा था, यानी इनके लिए काम करने वाले बंदे ने पूरी तरह काम अंजाम दिया था और कहीं कोई नहीं जाग रहा था। लेकिन नहीं, इस घर में एक शख्स ऐसा था जो जाग रहा था और इनकी यहाँ आमद से वाकिफ भी था। वो डीएसपी ज़हीर खान है। इजाज़त लेने के बाद इन्हें इस शख्स का नाम भी पता चल गया था और बलाई मंजिल के उस कमरे तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे जिसमें इसने खुद को बंद कर रखा था। इससे कबल के उस तक पहुँचने की तदबीर करते पुलिस की गाड़ियों का हूटर सुनाई दिया। वो भड़क कर खिड़की की तरफ लपके बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।